والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا، سبحان اللہ۔ جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا۔ کچھ نہ تھا ان کی آمد سے پہلے عرب، دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا۔ بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے اے آقا، بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے، اور شہنشاہ تمہارا گدا بن گیا۔ ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف حمد و ثنا بن گیا۔ ہے خدا کے محب سب نبی اور ولی، ہے خدا کے محب سب نبی اور ولی، پر محب آپ کا خود خدا بن گیا، سبحان اللہ۔ اور جس کو آقا کے در کی غلامی ملی تو ہم نے سن لیا، اب ہمارا ماٹو اور مشن اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام، بے شک سبحان اللہ۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا، بے شک۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام برادران اسلام، عزت مآب تشریف لانے والے، نبی پاک کی ختم نبوت کے پروانے، صحابہ کے دیوانے، اہل بیت کے مستانے، تمام حضرات کے سامنے دور موڑ کی اس جامع مسجد میں ہمارے دل کے انتہائی قریب بھائی عمران صاحب اور ہمارے بزرگ رہنما، ہمارے رہبر جناب رشید احمد لشاری صاحب کی کوشش اور کاوش کی وجہ سے چند ایک باتیں آپ حضرات کی جھولی میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہاں پہ الحمدللہ موجود ہیں ہمارے اس علاقے کی شان آن بان حضرت میرے بڑے بھائی ڈاکٹر لیاقت صاحب، جو ہمارے اس علاقے کے آنے والے وقت میں ضلع تونسا کے اس وقت تحصیل تونسا کے صدر ہیں۔ ان کی محبت کی وجہ سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیسی گفتگو ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم نسبت کے قائل ہیں، ہمارے بڑے بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، جہاں جاتے پہلے پوچھ لیا کرتے کیا عنوان ہے، بات کیا ہونی چاہیے، کس انداز سے ہونی چاہیے، کس لحاظ کو خاطر رکھا جائے۔ ہم نسبتوں کے امین ہیں، میں نے بھی اسی طرح مشورہ کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بستی درخانی میں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد تفصیلی خطاب ہوگا جیسے آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ تربیتی حوالے سے نظریات کی مضبوطی کے لیے چند ایک ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں موتی آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم صحابہ کا نام لینے والے ہیں، اور صحابہ وہ واحد جماعت ہے جو نبی پاک کے دل و دماغ میں بھی ہے، قرآن کے سینے میں بھی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ دل و دماغ میں میں نے بڑا لفظ بول دیا ہوگا، آپ کو یوں لگے گا کہ یہ کتنی بڑی بات کر دی۔ میں نے آقا کو سوتے دیکھا تو ابو بکر کو پکارتے ہیں، میں آقا کو اٹھتے دیکھتا ہوں تو عمر کو پکارتے ہیں، آقا کی ضرورت کو دیکھتا ہوں تو عثمان کو پکارتے ہیں، مرحب کے مقابلے میں جانے کی بات آتی ہے تو علی کو پکارتے ہیں، جب محبت کی بات آتی ہے تو حسین کو پکارتے ہیں،
जब वुजू करने की बात आती है तो अमीर मुआविया को बुलाते हैं। जब काबे पर चढ़ा के अजान दिलवाने की बात आती है तो हफ्से के काले बिलाल को पुकारते हैं। जब मुफस्सिर की बात आती है तो इब्ने मसूद को, मुहद्दिस की बात आती है तो इब्ने अब्बास को, फिक़ह की बात आती है तो इब्ने उमर को पुकारते हुए नजर आते हैं। इंसान के ज़हन में, दिल में, दिमाग में जो जो चीज छाई होती है, आप गद्दों के दिनों में चल रहे हैं, आपके अगर थ्रेशर नहीं लगी, आपकी कटाई नहीं हुई, आप सोते हुए ख्वाब में भी कहेंगे जल्दी करो हल ले आओ, जल्दी करो कोई थ्रेशर ले आओ, कोई हार्वेस्टर ले आओ। आप उठेंगे तो आपके घर वाले गवाही देते हुए नजर आएंगे, यार आज आपने सोए हुए सारी गंदम की कटाई कर ली, सोए हुए में आपने थ्रेशर भी लगवा लिया, हार्वेस्टर भी लगा लिया। मैंने कहा जो इंसान के ज़हन में होता है, इंसान उसी का आईना दिखाता है, इंसान उसी के आईने में गुम हो जाता है। मैं कुर्बान आमना के दुर्र यतीम, बदरुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिना, सय्यिदे ज़ीशान, रूहे गुलिस्तान, शम्मे फ़िरोज़ा, साहिबे कुल मका, जानशीने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल्ला और जिगर गोशे आमना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमा दिया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। नबी जो जो कहता है वो कहता नहीं है, कहलवाया जाता है, करता नहीं है, करवाया जाता है, करवाया जाता है, वो बोलता नहीं है, अल्लाह की तरफ से बुलवाया जाता है। मैंने कहा मेरे रब ने कहा होगा, ए मोहम्मद तुझे जरूरत है तो अबू बकर को पुकार ले, तुझे जरूरत है तो उमर को पुकार ले, तुझे जरूरत है तो उस्मान को पुकार ले, तुझे जरूरत है तो अली को पुकार ले, तुझे जरूरत है तो हमसे के काले बिलाल को पुकार ले, तुझे जरूरत है तो हसन और हुसैन को पुकार ले, तुझे जरूरत है तो अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान को पुकार ले। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसे ही पुकार के नजर आए। मैंने दावा किया, उस पे दलील मिल गई कि मेरे आका की जिंदगी की अलिफ से लेकर मेरी जिंदगी, आका की जिंदगी के आखिर तक अगर हम देखें तो आका की जिंदगी में आका ने सबसे ज्यादा जिन्हें पुकारा वो मोहम्मद के सहाबा ही है, फिर मोहम्मद के अहले बैत ही है। वो हमारे लिए इतने बुलंद वाला है, तो हमारा हक बनता है कि जिन्होंने मोहम्मद की ख्वाहिशों को पूरा किया, जिन्होंने मोहम्मद की जरूरियात को पूरा किया, जिन्होंने मोहम्मद के ख्वाबों को पूरा किया, जिन्होंने मोहम्मद के दिल के ख्यालों को पूरा किया, जिन्होंने मोहम्मद के जिहाद को पूरा किया, जिन्होंने मोहम्मद की बात को पूरा किया, जिन्होंने मोहम्मद की मुस्कुराहट को पूरा किया। आप कहें कि आका की मुस्कुराहट को सहाबा ने कैसे पूरा कर दिया? मैं यूं कहूं, बिलाल से कहा गया काबे की छत पर चढ़कर अज़ान दे दे। बिलाल ने कहा आका मेरा तो हसब भी कोई नहीं, नसब भी कोई नहीं, रुतबा भी कोई नहीं, मकाम भी कोई नहीं, जायदाद भी कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ए बिलाल काबे की छत पर चढ़, यही तो दुनिया को बताना चाहता हूँ, जो मोहम्मद के कदमों में चला आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कदमों की ज़ीनत काबे को बुला लेता है। सुभान अल्लाह। ये सहाबा है, और ये सहाबा वो है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तस्बीह तैयार की। तस्बीह का पता है ना, हर बच्चे को, बूढ़े को, जवान को पता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तस्बीह तैयार की, उसमें सारे ही दाने जो है वो चुन चुन कर रखे गए, जिसकी जहां जरूरत थी वही रखा गया, जिसको जिस जगह आना था वही समेटा गया। इस तस्बीह के दानों को बना के इन तस्बीह के दानों का तारुफ कुरान के अंदर करवा दिया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा वअदल्लाहिल हुस्ना उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून उलाइका हुमुल मुहतदून अफला तुफ़्लिहून रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ने ये सारे तस्बीह के दाने, जिनमें अबू बकर भी हैं, कहो सुभान अल्लाह, जिनमें उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, तलहा भी है, जुबैर भी है, साद भी है, सईद भी है, अबू ज़र भी है, अब्दुर रहमान भी है, हसन भी है, हुसैन भी है, अमीर मुआविया भी है, हबशे का काला बिलाल भी है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अनीस भी है, इब्ने अब्बास भी है, इब्ने उमर भी है, इब्ने मसूद भी है। ये सारे दानों को इकट्ठा करके एक तस्बीह तैयार की। उन तस्बीह को तैयार करके अपने महबूब को इस तस्बीह के दानों के दरमियान लाकर रख दिया और फरमा दिया कि ये जो दरमियान में है ये रहमतुल लिल आलमीन है, और जो साइडों पे तस्बीह के दाने हैं ये मोहम्मद के सहाबा हैं। सुभान अल्लाह। और फिर दुनिया ने देखा, अल्लाह ने बता दिया ये तस्बीह के दाने कभी मोहम्मद से जुदा नहीं हो सकते,
मैंने लड़ते हुए मोहम्मद को बदर में देखा, ये दाने साथ थे। सुभान अल्लाह। मैंने ओहद में देखा, खंदक में, खैबर में, तबूक में, यरमुक में, मोता में, ज़ातुर रिका में, ज़ुलाजीरा में, पीरे मऊना में, हमरा उल असद में देखा, ये दाने साथ थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान ने कह दिया कि जब तुम सहाबा के इन दानों के सीनों में देखोगे तुम्हें अल्लाह का कुरान नजर आएगा। अगर इनकी वफाओं को देखना चाहोगे, जब तुम कुरान के सीनों में देखोगे मोहम्मद के सहाबा नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तरबियत फरमाई नजरियाती तौर पे। मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा, नजरियाती तौर पे उनकी तरबियत फरमाई। नजरिया किसे कहते हैं? हमें समझ आ जाए कि इस बोतल में पानी है और पानी भी वो है जो सेहत के लिए अच्छा है, मुजरे सेहत नहीं। इस बात के लिए मेरा नजरिया बन गया कि इसको पिया जा सकता है, इसको कहीं पिलाया जा सकता है, इसको अपनी फसलों में लगाया जा सकता है, इसे किसी प्यासे की प्यास बुझाई जा सकती है। नजरिया बन गया, पक्का हो गया, अटल हकीकत बन गया। मैंने कहा अल्लाह के लाडले पैगंबर ने अबू बकर का नजरिया बनाया कि अल्लाह एक है। बेशक। अल्लाह के नबी ने नजरिया बनाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सिर्फ बनाया नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, तो अल्लाह ने इन नजरियाती लोगों का इम्तिहान लिया। वो इम्तिहान भी ऐसा था कि मौका आया अबू बकर ने अपने बाप के मुंह पे थप्पड़ दे मारा, मौका आया हजरत उमर फारूक ने अपने सगे चचा के गर्दन पर छुरी चला दी, तलवार चला के उसे कत्ल कर दिया। मौका आया हजरत उस्मान को कहा गया कि तू बुरा कर गए लेकिन तेरे महबूब को इजाजत क्या नहीं। नजरिया बना हुआ था, कहने लगे कि मेरी वो इबादत ही नहीं जिसमें मोहम्मद ना हो। सुभान अल्लाह। नजरिया बना था, काबा तो वही था ना, किबला तो वही था, फेरे तो वही थे, तवाफ तो वही था। उस्मान चाहते तो कर लेते कि मैं तो कर आया हूं, आपको इजाजत मिलती है या नहीं, साहब को पता कह नहीं, लेकिन मैं कुर्बान। उस्मान ने कहा मेरी वो इबादत ही नहीं जिसमें मोहम्मद ना हो। यही तो नजरिया बना। अली छोटा है, अपना भाई है, शेर खुदा अल्लाह ने बना दिया। हजरत अली अगर चाहते तो रोला डाल देते, शोर मचा देते कि देखो बदर के मार्के में मैंने कैसे जोहर दिखाए। अली आता है, नबी से कहता है मैंने तो खाया भी आपका, पिया भी आपका, पहना भी आपका, रहा भी आपका, सीखा भी आपका। ए महबूब अब ऐसी अता कर दीजिए। आका ने फरमाया मैं अपनी बेटी तुझे दे दूं, क्या तुझे कबूल है? अली ने कहा इससे बड़ी मुझे अजमत क्या मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से फातिमा का निकाह अली से करके शेर खुदा बना दिया गया। सुभान अल्लाह। और नजरियात बने थे। फिर उस फातिमा और अली से जो बच्चे पैदा हुए, हाय उन बच्चों का क्या मकाम। मैंने बच्चों से पूछा तुम कौन हो? कहने लगे जन्नतियों के सरदार है। तो बोले तो सही जरा बोले तमाम से सुभान अल्लाह। मैंने कहा तुम्हारी अम्मा कौन है? कहने लगी जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा तुम्हारा अब्बा कौन है? कहने लगा वो शेर खुदा है। मैंने कहा तुम्हारे नाना का तारुफ क्या है? वो कहने लगे वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। ये नजरियात बनने के बाद हुआ और आप हैरान हो गए। अल्लाह के नबी ने उन्हें यकीन दिला दिया अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और इस बात पर उन्हें आजमाया गया, आड़ों में डालकर, किसी की आंखें निकालकर, किसी के जिस्म के टुकड़े करवा के। और वो मुझे वक्त याद है कि एक जंग में हजरत खंसा मदीना से बाहर खड़ी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कोई आया, जंग से वापस आया, हजरत खंसा ने पूछा कि मेरे मोहम्मद का हाल कैसा है, मेरे आका का हाल कैसा है? जो बंदा आ रहा था वो कहने लगा वो मोहम्मद की बात करती हो, तेरे को पता क्या नहीं तेरा खामद शहीद थी के होना तो ये चाहिए। हम कहते हैं छोड़ो इस मोहम्मद के लिए मेरा खामद चला गया, अब अपने खामद की फिक्र करो। लेकिन उसका नजरिया बना था, वो फरमाने लगी मेरे खामद को छोड़ो, बताओ मेरे मोहम्मद का हाल कैसा। सुभान अल्लाह। किसी आने वाले ने कहा, एक और बंदा आया, पूछने लगी मेरे मोहम्मद का हाल कैसा है? वो कहने लगा तुझे मोहम्मद की पड़ी है, तुझे नहीं पता तेरा भाई शहीद हो गया। मेरे जैसा कोई होता तो कहता खामद ही मर गई है, गिराई मर गई है, तो छोड़ो बाकी काम छोड़ो, ना की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन मैं कुर्बान हजरत खंसा पे नजरियात बने थे। फरमाने लगी खामद को भी छोड़ो, भाई को भी छोड़ो, बताओ मेरे मोहम्मद का हाल
सुभान अल्लाह। तीसरा बंदा आया, उसने कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। कहने लगी उसे छोड़ो, बताओ मोहम्मद का हाल कैसा है। सुभान अल्लाह। चौथा बंदा आया, उससे पूछा मेरे मोहम्मद का हाल कैसा है। वो कहने लगा तेरा तो बेटा भी शहीद हो गया। यही तो रिश्ते होते हैं, इससे बढ़कर क्या रिश्ता होगा। भाई का, बेटे का, खामद का, वालिद का, ये चारों शहीद हो गए। हंसा फिर भी कहती है मुझे बताओ मेरे मोहम्मद का हाल कैसा है। रिवायात में आता है इतनी देर में आका है वो जहां का चेहरा नजर आया, चेहरा नजर आया। हजरत हंसा पर तूफान आफत आई है, पहाड़ टूटे कि बेटा बाप भाई खामद सारे ही चले गए। लेकिन जब मोहम्मद का चेहरा नजर आया, खुशी से निहाल होके मुस्कुराते हुए नारे लगाने लगी कि मेरा घर भी उजड़ जाए मुझे गम नहीं है, क्योंकि मेरे मोहम्मद से ही सलामत है। सुभान अल्लाह। मेरे मोहम्मद जिंदा है। ये नजरियात की बात है, और नजरियात अल्लाह के नबी ने सहाबा के बनाए। फिर बनाने के बाद ये कहना नहीं पड़ा ये सीखना है, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये अपना है, ये पराया है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये करीबी है, ये दूर वाला है। अल्लाह के नबी ने कहा बदर में उतरना है, सहाबा भाग के उतर गए। सुभान अल्लाह। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहना नहीं पड़ा। ओहद की बारी आई, 700 सहाबा मैदान में उतरते हुए नजर आए। खैबर, खंदक, तबूक, यरमूक, मोता, ज़ातुर रिकाज़ुल अशीरा, बीर मऊना, हमरा और असद आए। अल्लाह के नबी को किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ इशारा करना पड़ा। इशारा भी ऐसा किया कि सहाबा दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं। किसी ने पूछा क्यों भागते हो, वो कहने लगे नबी ने कहा है मैदान में जाओ। हम कहते हैं हम जाके बताएं कि सबसे पहले हम पहुंचे थे। सुभान अल्लाह। ये नजरियात की बात है। अल्लाह के लाडले पैगंबर ने सहाबा की नजरियाती तरबियत फरमाई, फिक्री तरबियत फरमाई, और फिक्री तरबियत फरमा के किसी से कहा नहीं जा तू इलेक्शन लड़। ये नहीं होया कि बाद सहाबा आके होए कि असली इलेक्शन नहीं लड़ना, अभी थोड़ी गल नहीं बननी। अल्लाह के नबी ने फिक्री तरबियत कर दी तो कहा कि अमीर माविया समंदरों की जंग तू लड़ेगा, लड़के दिखा दिया। सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तू हाथी और मादी, उन्होंने बनकर दिखा दिया। बेशक। हजरत उस्मान से कहा चंदा चाहिए, हमारे यहाँ इधर कोई एक मन दे देना। एक मन की गालियां निकालता है अगर उसे यूं लगे कि मेरी जगह सही नहीं, मेरा माल सही जगह नहीं पहुंचा। हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने मुश्किल हालत में सिर्फ देखा है, सिर्फ कहा है। 1700 गले के लदे ऊंट हजरत उस्मान ने मोहम्मद के कदमों पर मोहम्मद के दीन के लिए कुर्बान कर दिए। सुभान अल्लाह। ऐसे कुर्बान किए, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह के लाडले पैगंबर ने फिर फरमाया है उस्मान आज तो बाद अगर तू कोई गुनाह भी करे से ना ते अल्लाह साईं वो गुनाह ना लिख सी, नेकी लिख से। सुभान अल्लाह। नेकी लिख से। बेशक। मैंने कहा आज हम गुनाह करें तो गुनाहगार बने, ज़ना करें तो जानी बने, शराब पिए तो शराबी बने। मैंने कहा मेरा उस्मान देखो गुनाह भी करे तो सवाब बन जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। यही तो सहाबा है। मैं और तू कुरान पढ़े तो कारी बने, हदीस पढ़े तो मुहद्दिस बने, तफसीर पढ़े तो मुफस्सिर बने, तदबीर करे तो मुदब्बिर बने, फिक्र करे तो मुफक्किर बने, तहकीक करे तो मुहक्किक बने, कारोबार करे तो ताजिर बने। मैं सहाबा पे कुर्बान क्यों ना जाऊं। वो कुरान पढ़े तो कुरान बन जाए, सुभान वो अल्लाह। रोजा रखे तो कुरान बन जाए, वो जिहाद करे तो कुरान बन जाए, वो सहाबा नबी से मिले तो कुरान बन जाए, वो सहाबा नबी को लेकर मैदान में उतरे तो कुरान बन जाए। मैं और तू तिजारत करे तो ताजिर बने, मेरे सहाबा तिजारत करे तो अल्लाह का कुरान कहे रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतु वला